A stark warning about artificial intelligence from Geoffrey Hinton, the Nobel Prize-winning scientist whose pioneering research helped lay the groundwork for AI. That's why he's often called the godfather of AI. Hinton says there's a 10 to 20% chance AI will wipe out humans, but made headlines today suggesting at a conference that the tech industry should somehow install what he termed maternal instincts into superintelligent AI, so they'll protect humans like mothers protect their babies. They've been saying, we have to stay in control of these AIs. We've somehow got to be stronger than them. We've got to be dominant and they've got to be submissive. That's not going to work. We have to make it so that when they're more powerful than us and smarter than us, they still care about us. Geoffrey Hinton joins me now. Professor Hinton, your remarks have obviously gotten a lot of attention. You talked about engineers building maternal instincts into AI models. What would be the purpose of that? What would that do? And is it even possible? Most of the AI experts believe that sometime in the next 5 to 20 years, we'll make AIs that are smarter than people. And they'll probably end up much smarter than people. And there's very few examples we know of smarter things being controlled by less smart things. In fact, pretty much the only example we know is a mother being controlled by her baby. To make that happen, evolution built maternal instincts into the mother. And if we don't do something like that with these alien beings that we're creating, we're going to be history. How hard is it from just a technological perspective to actually build motherly instincts? I mean, is there an example of that being done at all, or has that happened at all? The only real example we have is evolution. Evolution obviously made a pretty good job of it with mothers. People haven't been focusing on that. They've been focusing on making these things more intelligent. But intelligence is just one part of a being. We need to make them have empathy towards us. And we don't know how to do that yet. But evolution managed it, and we should be able to do it. Do you believe human nature won't encourage some leader somewhere or some government somewhere to believe that they can control it, whether or not that's actually possible? Well, we have a nice example in the States of a government that's determined to control it. I don't think that's going to work. It may work against other countries, but when AI becomes smarter than people, that's just not going to work. This whole idea that people need to be dominant and the AI needs to be submissive, that's the kind of tech bro idea that I don't think will work when they're much smarter than us. Do you still believe that 10 to 20% chance of AIs wiping out humans is possible? Oh yes, if we can't figure out a solution to how we can still be around when they're much smarter than us and much more powerful than us, we'll be toast. What do you think? I mean, it's stunning to me that this technology, it's already changing things, but the tidal wave of change that we are going to be seeing shortly and are already seeing, that it's being run by people who are not elected. These are people, who are making billions of dollars doing this. Nobody ever really elected them. There's been no consensus agreement that, yes, this is good for humanity. Do you think the average person, and I include myself in that grouping, understands what is about to happen here? No, I think they don't. And I think it's important for the public to understand it. We need a counter pressure to the tech bros who are saying there should be no regulations on AI. And also we need the countries to understand they need to collaborate on how to avoid the existential threat. What do you think it does to initiative for, I have a 3-year-old and a 5-year-old. I'm very worried about, what world they're going to have in 10 years. If there's machines that do everything better than humans do, what's the initiative for people to strive to become good at something? One thing we know about mothers is mothers genuinely care about their babies, and they do whatever they can to make life interesting for the babies and to make the babies grow and realize their full potential. So if we have super intelligent AI looking after us, we may be able to get the same thing. Geoffrey Hinton, it's a real pleasure to talk to you. Thank you. Thank you. Hinton says there's a 10 to 20% chance AI will wipe out humans, but made headlines today suggesting at a conference that the tech industry should somehow install what he termed maternal instincts into superintelligent AI, so they'll protect humans like mothers protect their babies.
यहाँ हम 3 मुख्य शब्दों और वाक्यांशों पर ध्यान देंगे: चेन्स, हेडलाइंस और मैटरनल इंस्टिंक्ट्स। चेन्स का मतलब होता है संभावना या मौका। जब कहा जाता है कि there's a 10 to 20% chance, तो इसका मतलब है कि कुछ होने की संभावना 10 से 20% के बीच है। यह प्रतिशत हमें बताता है कि घटना कितनी संभव है, लेकिन निश्चित नहीं। हेडलाइंस का मतलब है समाचार के मुख्य शीर्षक। जब कोई खबर मेड हेडलाइंस करती है, तो इसका मतलब है कि वह खबर बहुत महत्वपूर्ण या ध्यान आकर्षित करने वाली है, जिसे अखबार या मीडिया के शीर्ष पर रखा जाता है। मैटरनल इंस्टिंक्ट्स एक बहुत ही खास और भावनात्मक शब्द है। इसका मतलब होता है माँ जैसा स्वाभाविक व्यवहार या भावना, जो बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए होती है। यहाँ एआई में मैटरनल इंस्टिंक्ट्स डालने की बात हो रही है ताकि एआई इंसानों की रक्षा माँ की तरह करे। यह एक कल्पनाशील और संवेदनशील विचार है कि तकनीक में भी ऐसी भावनाएं या सुरक्षा की भावना हो। इस वाक्य में वाइप आउट ह्यूमन्स का मतलब है इंसानों को पूरी तरह खत्म कर देना, जो एक बहुत गंभीर खतरे की बात है। इसलिए यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर यह वाक्य हमें बताता है कि एआई के खतरे की संभावना है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि एआई में माँ जैसी सुरक्षा भावना हो ताकि वह इंसानों की रक्षा कर सके। यह विषय तकनीक और मानवता के बीच एक दिलचस्प और जरूरी बातचीत को दर्शाता है। If we don't do something like that with these alien beings that we're creating, we're going to be history. यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है जिसमें भविष्य के बारे में चेतावनी दी गई है। सबसे पहले, गोइंग टू बी हिस्ट्री का मतलब है कि हम इतिहास बन जाएंगे। यह एक तरह की चेतावनी है कि अगर हम कुछ नहीं करते, तो हम खत्म हो जाएंगे या अस्तित्व में नहीं रहेंगे। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि हम इतिहास के पन्नों में समा जाएंगे या हम खत्म हो जाएंगे। यहाँ एलियन बीइंग्स का मतलब है परग्रही जीव या ऐसे जीव जो हमारे नहीं हैं। लेकिन इस वाक्य में इसका एक और अर्थ भी हो सकता है, जैसे कि हम कुछ नए, अनजाने या असामान्य प्राणी या तकनीक बना रहे हैं जो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। If we don't do something like that का मतलब है कि अगर हम कुछ ऐसा कदम नहीं उठाते जो जरूरी है, तो परिणाम बहुत बुरा होगा। यह वाक्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सही कदम उठाने होंगे। इस पूरे वाक्य में एक चेतावनी छुपी है कि अगर हम अपने बनाए हुए खतरनाक या अनजाने जीवों के साथ सावधानी नहीं बरतेंगे, तो हम अपने अस्तित्व को खतरे में डाल देंगे। अक्सर छात्र इस वाक्य में गोइंग टू बी हिस्ट्री को केवल इतिहास बनना समझ लेते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि हम खत्म हो जाएंगे, यानी हमारी मौजूदगी खत्म हो जाएगी। यह एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य है जिसमें 2 मुख्य शब्द हैं, डोमिनेंट और सबमिसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभुत्व रखने वाला या किसी पर हावी। जब हम कहते हैं कि कोई डोमिनेंट है, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति या चीज नियंत्रण में है या दूसरों से ऊपर है। दूसरी तरफ सबमिसिव का मतलब होता है आज्ञाकारी या जो आदेश मानता है। यह वह स्थिति है जहां कोई व्यक्ति या वस्तु दूसरों के नियंत्रण में होती है। इस वाक्य में कहा गया है कि लोग चाहते हैं कि वे डोमिनेंट हों और एआई सबमिसिव हो, यानी लोग एआई पर नियंत्रण रखें और एआई उनकी बात माने। लेकिन वक्ता कह रहा है कि जब एआई हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा, तो यह सोच काम नहीं करेगी। इसका मतलब है कि जब तकनीक इतनी उन्नत हो जाएगी कि वह इंसानों से बेहतर सोच सके, तो उसे नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। यहाँ डोमिनेंट और सबमिसिव के बीच का फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि ये शब्द अक्सर पावर डायनामिक्स यानी शक्ति के संबंधों को दर्शाते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि इंसान हमेशा तकनीक से ऊपर रहेंगे, लेकिन यह वाक्य इस सोच को चुनौती देता है। इसलिए इस वाक्य से हमें यह समझना चाहिए कि तकनीक के बढ़ते स्तर के साथ हमारी सोच और नियंत्रण की धारणा भी बदल सकती है। यह एक महत्वपूर्ण विचार है जो भविष्य की तकनीकी दुनिया को समझने में मदद करता है। Do you still believe that 10 to 20% chance of AIs wiping out humans is possible? यहाँ हम एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य देख रहे हैं जिसमें 2 मुख्य बातें हैं, चेन्स ऑफ और वाइपिंग आउट। चेन्स ऑफ
का मतलब होता है किसी चीज के होने की संभावना या मौका। जैसे कि यहाँ कहा गया है 10 to 20% chance of AIs wiping out humans, यानी 10 से 20% संभावना है कि AI इंसानों को खत्म कर देगा। यह एक संभावना को दर्शाता है, न कि निश्चितता को। अब बात करते हैं वाइपिंग आउट की। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गंभीर शब्द है, जिसका मतलब होता है पूरी तरह से खत्म कर देना या मिटा देना। यह सिर्फ मर जाना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से अस्तित्व समाप्त हो जाना। उदाहरण के लिए, द डिजीज वाइप्ड आउट द एंटायर विलेज, मतलब बीमारी ने पूरे गांव को खत्म कर दिया। यहाँ अक्सर लोग वाइपिंग आउट को सिर्फ मरने के रूप में समझ लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक और गंभीर होता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि AI ह्यूमंस को वाइप आउट कर सकता है, तो इसका मतलब है कि AI इंसानों का अस्तित्व खतरे में डाल सकता है। तो इस वाक्य में लेखक पूछ रहा है कि क्या आप अभी भी मानते हैं कि AI के इंसानों को खत्म करने की 10 से 20% संभावना हो सकती है? यह एक गंभीर सवाल है जो भविष्य की तकनीक और उसके प्रभावों पर सोचने को मजबूर करता है। Oh yes, if we can't figure out a solution to how we can still be around when they're much smarter than us and much more powerful than us, we'll be toast. यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और रोजमर्रा की अंग्रेजी की अभिव्यक्ति है, we'll be toast। इसका मतलब है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे या हम खत्म हो जाएंगे। यह एक इडियम है जो आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब कोई स्थिति बहुत खराब हो जाती है। जैसे यहाँ कहा गया है कि अगर हम समाधान नहीं निकाल पाए कि कैसे हम जिनसे ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर हैं, उनके सामने टिक सकते हैं, तो हम टोस्ट हो जाएंगे, यानी हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। बी टोस्ट का मतलब है कि कोई चीज या व्यक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा या हार जाएगा। यह एक अनौपचारिक और थोड़ा मजाकिया तरीका है किसी गंभीर खतरे को बताने का। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे If we don't fix the car, we'll be toast, तो इसका मतलब है कि अगर कार ठीक नहीं हुई तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। यहाँ we'll be toast में will का मतलब है we will, यानी भविष्य में होने वाली बात। इसलिए यह चेतावनी दे रहा है कि भविष्य में अगर हम समाधान नहीं निकाल पाए तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। इस वाक्य में if we can't figure out a solution का मतलब है कि अगर हम समाधान नहीं खोज पाए। फिगर आउट का मतलब है समझना या हल निकालना। यह एक बहुत सामान्य और उपयोगी फ्रेज है। तो कुल मिलाकर यह वाक्य हमें बताता है कि हमें स्मार्ट और ताकतवर लोगों के सामने टिकने के लिए समाधान निकालना होगा, नहीं तो हम टोस्ट हो जाएंगे। यह एक चेतावनी और गंभीर स्थिति को दर्शाता है, लेकिन टोस्ट शब्द इसे थोड़ा हल्का और यादगार बनाता है। But the tidal wave of change that we are going to be seeing shortly and are already seeing, that is being run by people who are not elected. यहाँ हम एक वाक्य देख रहे हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द और वाक्यांश है जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले है टाइडल वेव ऑफ चेंज। इसका मतलब है बहुत बड़ी और तेज बदलाव की लहर। जैसे समुद्र में बड़ी लहर आती है, वैसे ही यहाँ बदलाव बहुत जोरदार और व्यापक है। यह एक रूपक मेटाफोर है जो बदलाव की तीव्रता को दर्शाता है। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है are going to be seeing shortly and are already seeing। यह भविष्य और वर्तमान दोनों समय को दर्शाता है। are going to be seeing का मतलब है कि हम जल्द ही देखेंगे, और are already seeing का मतलब है कि हम पहले से ही देख रहे हैं। यह इंगित करता है कि बदलाव पहले से शुरू हो चुका है और आगे भी होगा। तीसरा हिस्सा है being run by people who are not elected। इसका मतलब है कि ये बदलाव उन लोगों द्वारा संचालित हो रहे हैं जिन्हें जनता ने चुना नहीं है। यहाँ being run एक पैसिव वॉइस है जो बताता है कि बदलाव का नियंत्रण किसी के हाथ में है। इस वाक्य में व्याकरण की बात करें तो that we are going to be seeing shortly and are already seeing में that एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो tidal wave of change को जोड़ता है। साथ ही are going to be seeing एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है जो भविष्य में जारी रहने वाली क्रिया को दर्शाता है। आमतौर पर इस वाक्य में बदलाव की तीव्रता और उसकी वर्तमान व भविष्य की स्थिति को बहुत प्रभावी ढंग से बताया गया है। If there's machines that do everything better than humans do,
what's the initiative for people to strive to become good at something? इस वाक्य में दो मुख्य शब्द या वाक्यांश हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, इनिशिएटिव और डू एवरीथिंग बेटर देन ह्यूमंस डू। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल या किसी काम को शुरू करने की इच्छा और क्षमता। यह सिर्फ काम करने की बात नहीं है, बल्कि खुद से आगे बढ़ने और कुछ नया करने की प्रेरणा भी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मशीनें इंसानों से बेहतर काम कर सकती है, तो इंसानों के पास आगे बढ़ने या कुछ अच्छा करने की क्या वजह बचती है। डू एवरीथिंग बेटर देन ह्यूमंस डू का मतलब है कि मशीनें इंसानों से हर काम में बेहतर हो जाएं। यह एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि तब इंसानों की भूमिका क्या होगी। लेकिन यहाँ इनिशिएटिव की बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मशीनें भले ही तकनीकी काम बेहतर कर लें, लेकिन इंसानों की रचनात्मकता, भावना और नई सोच की क्षमता अलग होती है। इसलिए यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानों को अपनी पहल और प्रयास जारी रखना चाहिए ताकि वे मशीनों से अलग अपनी खासियत दिखा सकें। यह एक प्रेरणा भी है कि हमें हमेशा कुछ नया सीखने और बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए।